بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے نے پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں قدرت کی بے شمار نعمتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کہ ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، چونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھی، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے، اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں پر کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر ایک دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت تنگ تھے، وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا، ان کا برا حال تھا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، اس مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہے، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والا جو ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ پنڈت جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکل پڑا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سانپ کو اپنے عمل سے وہ ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور وہ وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے جب انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو اس ایک زہریلے سانپ نے اس کو کاٹ لیا ہے، تو وہ فوری طور پر اسے گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو ملک بڑھ کے بڑے بڑے طبیب بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے، پر کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا اور وہ خود بھی اتنا بڑا عامل تھا، لیکن اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، نہ روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود اور اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ اسی وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی، مانو جیسے درویش کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور
कोई भी इनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारियों ने कहा, अरे भाई लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। दरबारियों ने जब फकीर की हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारा सरदार के पास, और तुम जैसे गरीब से वो अपना इलाज करवाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालिक बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से एक फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है इसको निकाल कर फेंक दूंगा। वो कहने लगी, ठीक है, इसको अंदर बुलाओ। जब फकीर इस घर में आए तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। पंडित के पैर की जानब आया जहाँ पर सांप ने काटा हुआ था। इस जगह पर इस अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और इसके बेटी फिक्रमंद थी कि ये कौन दीवाना था, कमरे में आया, इलाज करने की बजाय इस जगह पर थूक के भाग गया जहाँ सांप ने काटा था, और तो और इसको कोई पकड़ भी ना सका। और इसकी बेटी गुस्से में आ गई। इसने कहा, ये तो बेअदबी है, इसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, इसको साफ करो, मैं अभी इसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही तबीब ने थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित के जहर से नीली होती हुई टांग पर से थूक साफ करने लगा तो हैरान होते हुए रुक गया। इसने उंगली से थूक को सांप के रस्से पर अच्छी तरह मल दिया तो इसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? इस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप इस थूक को मल रहे हैं। इसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा, रुको एक मिनट। जैसे ही इस थूक को पंडित की टांग पर मिलाया गया, जहर का असर फौरन ही खत्म हो गया। वो टांग जो कटने के काबिल थी वो अब पहली हालत पर आ गई थी। पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी वो ठीक हो गई थी और धीरे धीरे पंडित होश में आ गया। जब पंडित होश में आया तो इसको फकीर के थूक के किस्से का पता चला। इसने कहा, अरे भाई वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने इसे दीवाना कहा, इसकी बेइज्जती की और वो थूक कर यहाँ से ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ इसको लेकर आओ, इसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम इसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर इसके सारे दरबारी सिपाही और इस फकीर को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए, कहीं भी इस दरवेश को ना देखा। जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से इस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने किस को सजदा भी कर रहा है। खैर पंडित का हुक्म था, फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहते हैं कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे मुआजरत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक यानी लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कर लीजिए। फकीर ने मुस्कुरा कर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, ये फिक्र ना करो, मैं घोड़े के साथ साथ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना माल और दौलत और मुलाजमों के साथ इस रहायश गाह में अकेला रहूंगा? पंडित सोच में पड़ गया और ये बात सुनकर तो मैं भी सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। इसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, पर एक शर्त है,
कि आपको जो कुछ मैं दे रहा हूँ इसके लिए आपने अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे खास मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम तो अपने इन मूर्तियों की इबादत करते हैं और आप जिसको सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि आप मुसलमान हैं और आपने आज इसका सबूत दिया है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले ले और अपने मजहब को छोड़ दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये भी दुआ दी है कि मेरी बहुत सी औलाद हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, तो मुझे बताइए अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हजूर अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। मुस्कुरा कर बोले, अगर ये सारा माल लेकर मुझे ही रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और कीमती लिबास, अपनी बेटी और आलीशान घर, हर चीज अपने पास ही रखें। मैं खुश हूँ कि मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या इस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला हूँ सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ मिल ही जाएंगी, इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने कहा, क्या मकसद है आपका? फकीर ने कहा, कुछ नहीं, यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस इन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरफ से देख लिया तो अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी मार है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को ये मशवरा देता कि जाओ बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादू करनी पर एक फूंक मारी और इसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इतनी बड़ी छिपकली थी कि वहाँ पर जितने इंसान खड़े थे इन सब से ऊंचा कद इसी का था। जो ही इसके पास आने लगी, आस्ता आस्ता करीब आने लगी और अपना जहर इन पर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। इसी वक्त इन्होंने इसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे इसका आधा चेहरा जल रहा था। इसका चेहरा जलकर काला हो रहा था। अनकरीब था कि पूरा जिस्म गल के खत्म हो जाए। पंडित दौड़ता हुआ आया और इनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा, हजरत इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फकीर ने कहा, हम सबको जबरदस्ती अपने दीन में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो इस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। पंडित कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं इसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया है। आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर कोई भी सख्ती नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दे। अल्लाह वाले ने इस छिपकली पर, जो कि पहली मर्तबा फूंक मारने से छिपकली बन गई थी, जब दोबारा फूंक मारा तो वो इंसान बन गई। फकीर के कदमों से लिपट गई और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा। आप जब तक यहाँ आप मेरे लिए एक फकीर इंसान थे, अपने लिबास और हुलिये से मुझे दीवाना फकीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बनी रही और चाहती थी कि बदला लूं, पर मुझे तो खुद अजाब मिल गया। वो कहने लगी कि आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर
मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। यूं एक अल्लाह वाले दरवेश के हाथों पर पंडित इसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और इस बस्ती में अमनो अमान कायम हो गया। कल तक जो गुरूर करते थे, आज तक वो तमाम लोग अच्छाई का पैकर बन गए थे। एक अल्लाह वाले की करामत से, इनके अच्छे अमल से, सुबहान अल्लाह।